Good morning, students. DSC 103 में what did we do yesterday? We were going through a story of A.K. रामानुजन की स्टोरी है which is based on फीमेल, जो फीमेल पे बेस्ड है सेक्शन पहले हमने वो उठाया है कल्चरल डाइवर्सिटी का. इट डील्स विद फीमेल एज अ सेवियर. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं जो आपको सोसाइटी में देखने को मिलते हैं. एट टाइम्स फीमेल आर देयर हु आर वेरी हेल्पफुल. एट टाइम फीमेल्स आर देयर हु आर विद नेगेटिव थॉट्स दे आर अफेक्टिंग अदर्स. सो व्हाट डू वी नीड टू डू. हमें करना क्या है बेसिकली, हमें पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है और नेगेटिविटी को हमें साथ में छोड़ते जाना है. सो दिस वेरी स्टोरी रिटन बाय रामानुजन डील्स विद एन ओल्ड वुमन, हर टू डॉटर्स. उसकी बड़ी डॉटर है, छोटी डॉटर है. छोटी डॉटर बहुत ज्यादा स्मार्ट है. शी नोज हाउ टू हैंडल टफ सिचुएशंस एंड व्हेन शी कम्स टू नो कि हर मदर इज डूइंग मेनियल जॉब्स, तो शी हैज some कहीं से उसने she has learnt an art of converting or changing herself into a flowering tree. Now one day she demonstrates it in front of her sister. वो क्या करती है, 2 pitcher full of water मंगवाती है which should not be touched with fingertips, जिसमें हाथ नहीं लगा होना चाहिए. जैसे हम किसी को पानी पकड़ के जाते हैं ना, we take hold of things like this. इस तरह से पकड़ के जाते हैं, इस तरह से नहीं पकड़ते. So she took hold of pitchers, 2 pitchers she called, और उसने बाहर जो कोर्ट यार्ड था वहां पे एक ट्री था, वहां पे सफाई की. एंड younger sister, she sat there and she poured water. She was chanting some hymns. She converted herself into a flowering tree. और उसने अपनी सिस्टर को क्या बोला, एक चीज का ध्यान रखना कि मेरी कोई ब्रांच या स्प्राउट नहीं टूटना चाहिए. रेस्ट ऑफ द थिंग इज दैट जस्ट pluck flowers and fill baskets. उसने वो fill की. They were sold to the king. Queen purchased them. The son of that very king, he saw the flowers. He was amazed to see. He started following the girls, and one day he came to know that there is a girl who converts her or changes herself into a flowering tree. So what did he do? He felt like I'll marry this girl, and he showed his annoyance. जैसे हम लोग नॉर्मली भी ऐसे ही करते हैं. गुस्सा आया होता है, हम हेड डाउन करके बेड पे लेट जाएंगे. वील जस्ट हाइड आवर फेस, और हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं. तो ये हमारे वो एक्सप्रेशंस है जो हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने एक्शन के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो when he was asked, तो the reason was clear, he wanted to marry that very girl, and the king felt कि कोई बात नहीं, let us talk to the old woman. She was called and she was she was very scared. अब बेचारी बूढ़ी औरत who was doing menial jobs, उसको अगर किंग बुलाता है तो उसको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया. And when she came to know, it was because of her daughters, and king wanted to marry one of her daughter with his son. वो उसको अपने बेटे की वाइफ बनाना चाहता था. तो she came back home and she was very much annoyed because she didn't know actually. उसको पता ही नहीं था कि उसके बेटियां जो है वो घर पे क्या कर रही हैं. तो when she came to know, the daughter converted herself into a flowering tree ultimately, and she was shocked to see all that. Now what happened next, we have to go through that. So let us start. Next day क्या हुआ? The king's man came to the old woman's house. जो राजा के आदमी थे वो बूढ़ी औरत के घर गए. And asked her to appear before the king. उसको बोला कि चलो राजा बुला रहे हैं. The old woman went and said, Your Highness, what do you want of me? आप मुझसे चाहते क्या हो? The king answered, Tell me, when should we set the date for the wedding? कि शादी की डेट कब की निकालनी है. What can I say, Your Highness? अब देखो वो कितनी humble है, because उसके लिए 2 चीजें हैं. One thing, she is happy from inside that her daughter is being married with the king's son. On the other hand, she is very scared because she belongs to a very poor family. कि राजा ने मुझे बुलाया है तो राजा के घर में कैसे सेटलमेंट होगी. शी इज स्केयर्ड फॉर हर डॉटर. What can I say, Your Highness? We'll do as you wish. The old woman said, secretly glad by now. Glad means happy. She is very happy inside, from inside. बहुत खुश है वो, because she is feeling कि my daughter is being married with a prince. कि मेरी डॉटर की जो शादी है वो प्रिंस से होने वाली है. लेकिन बाहर से तो वो डरी हुई है, वो शो वही कर रही है. The wedding arrangements began. वेडिंग अरेंजमेंट शुरू हो गए. द फैमिली मेड रिचुअल डिजाइन्स. रिचुअल डिजाइन्स होते हैं जो आप दिवाली में रंगोली डालते हो. साउथ इंडिया में आपने देखा होगा, नॉर्मली छोटे से छोटे त्योहार को भी वो लोग काफी ज्यादा ये काम करते हैं. द फैमिली मेड रिचुअल डिजाइन्स ऑन द वेडिंग फ्लोर एज लार्ज एज द स्काई. बिगर डिजाइन्स वर बीइंग मेड एंड बिल्ड अ कैनोपी सेरेमोनियल टेंट. और एक बड़ा सा कैनोपी वाला, जो छत्र वाला जो है पंडाल बनाया गया, as large as the earth. It was too big. All the relatives arrived. सारे के सारे relatives पहुंच के at an auspicious moment. उस auspicious moment पे the girl who knew how to become a flowering tree was given in marriage to a prince. Auspicious होता है उस पवित्र moment में जो लड़की की शादी राजा से करवानी थी वो करवा दी.
आफ्टर द नैप्चुरल सेरेमनी, शादी की सेरेमनीज के बाद, द फैमिलीज लेफ्ट द कपल ऑल अलोन इन अ सेपरेट हाउस। कपल को, हस्बैंड वाइफ को एक सेपरेट घर दिया गया। बट ही वॉज अलूफ, लेकिन लड़के का मूड कुछ ठीक नहीं था। सो वॉज शी, वो भी ऐसे ही थी। 2 nights passed, 2 रातें गुजर गई। let him talk to me. The girl was thinking boy would talk to me, and boy was thinking that she'll talk to me. Thought she, उसको लगा कि ये मुझसे बात करेगा। Let her begin, thought he, उसको लगा कि लड़की मुझसे बात करेगी। So both groom and bride were silent. Groom is दूल्हा and bride is दुल्हन। They just kept quiet. On the third night the girl wondered. लड़की को हैरानी हुई। He hasn't uttered a word. Why did he marry me? कि उसको बात ही नहीं करनी थी, तो he didn't utter means speak, उसने कुछ नहीं कहा, तो शादी क्यों की? She asked him aloud, जोर से पूछा, Is it for this bliss you married me? इसलिए शादी की थी मुझसे। He answered roughly, उसने बड़े रफली कहा, I'll talk to you only if you do what I ask, कि मैं तुमसे बात करूंगा कब? When? If you do what I ask, मैं जो बोलूंगा वो तुम करते हो। Won't I do as my husband bids me? क्या मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, हस्बैंड की बात नहीं मानूंगी? Tell me what do you want, कि चाहते क्या हो? You know how to turn into a flowering tree, don't you? तुम्हें पता है कि फ्लावरिंग ट्री कैसे बनते हैं? Let me see you do it. तुम करो, मैं देखना चाहता हूँ। We can then sleep on flowers, कहते हैं हम फूलों पे सोएंगे। Cover ourselves with them, फूलों में ही सोएंगे। That would be a lovely. I'll feel too good. वो lovely experience रहेगा। My lord, I am not a demon, कि मैं जीमन थोड़े ना हूँ। I am not a goddess, ना तो goddess हूँ। I am an ordinary mortal like everyone else, मैं एक ordinary human being हूँ। मॉर्टल मीन्स जो नश्वर है, इंसान हूं जैसे और लोग हैं। कैन अ ह्यूमन बीइंग एवर बिकम अ ट्री, कि क्या इसको इंसान ट्री बन सकता है? शी सेड वेरी हम्बली, उसने बहुत सॉफ्टली बात की। आई डोंट लाइक ऑल दिस लाइंग एंड चीटिंग, मुझे झूठ बोलना, चीट करना पसंद नहीं है। आई सॉ यू द अदर डे बिकमिंग ब्यूटीफुल ट्री, मैंने देखा था तुम खुद को कैसे एक ब्यूटीफुल ट्री में कन्वर्ट करती हो। आई सॉ यू विद माई ओन आईज, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। इफ यू डोंट बिकम अ ट्री फॉर मी, फॉर होम विल यू डू दैट, मेरे लिए नहीं करोगी तो किसके लिए करोगी? ये चिडेड हर, उसने उसको डांटा थोड़ा सा। द ब्राइड वाइप्ड अ टीयर फ्रॉम हर आईज विद द एंड ऑफ अ साड़ी, अब लड़की के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो देखो, वो उस चीज को रिवील नहीं करना चाहती थी। बट शी न्यू, ये आज की भी सच्चाई है। व्हेन अ गर्ल इज मैरिड, पेरेंट्स मैक्सिमम केसेस में, मुझे तो ये लगता है कि 90% केसेस में पेरेंट्स को क्या लगता है कि गर्ल इज मैरिड नाउ, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर हस्बैंड। उस लड़की का अपना जो वजूद है वो जुड़ जाता है हस्बैंड के साथ और उसको उसी की बात फॉलो करनी है। तो यहाँ पे शी हैड नो अदर ऑप्शन, तो उसने क्या किया? शी फॉलोड व्हाटएवर वाज बीइंग सेड, जो वो कहा जा रहा था उसको फॉलो करती है। शी वाइप्ड अ टीयर, वाइप क्या होता है? पोंछना। फ्रॉम हर आई विद द एंड ऑफ हर साड़ी एंड सेड डोंट बी एंग्री विद मी, ऑप्शन नहीं था, नाराज मत हो। इफ यू इंसिस्ट सो मच, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, जोर डाल रहे हो, आई डू एज यू से, आई जस्ट डू व्हाटएवर यू से। ब्रिंग 2 pitchers ऑफ वाटर, ही ब्रॉट देम, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ब्रॉट 2 pitchers ऑफ वाटर, शी अटर्ड चैंट्स ओवर देम, चैंट्स होते मंत्र, अटर्ड मीन्स स्पोक, उसने कुछ मंत्र बोले। मीन वाइल इन बिटवीन ही शट ऑल द डोर्स एंड द विंडोज, उसने सारे खिड़कियां दरवाजे बंद की। शी सेड रिमेंबर, एक बात याद रखना, प्लक ऑल द फ्लावर्स यू वांट, अब सारे फूल तोड़ना जो चाहते हो, बट टेक केयर नॉट टू ब्रेक अ ट्विग और टीयर अ लीफ, लेकिन किसी छोटे ट्विग को या लीफ को टीयर मत करना। देन शी इंस्ट्रक्टेड हिम टू हाउ एंड व्हेन टू pour वाटर, फिर उसने इंस्ट्रक्शंस दी कि किस कब, हाउ मीन्स कब, कैसे, और कब डालना है पानी। While she sat in the middle of the room meditating on God, रूम के सेंटर में बैठ के उसने आंखें बंद की, मेडिटेशन शुरू की। द प्रिंस poured 1 pitcher full of water over her, प्रिंस ने एक पिचर जो है घड़ा पानी का उस पर डाला। शी turned into a flowering tree. The fragrance of the flower filled the house, पूरी खुशबू से घर भर गया। He plucked all the flowers he wanted and then sprinkled water from the second pitcher all over the tree. उसने पानी जो है स्प्रिंकल किया, स्प्रिंकल करना क्या होता है? स्प्रे करना पूरी ट्री पे। It became his bride again. फूल तोड़े, 5 को दोबारा ह्यूमन बींग बनाया। She shook her tresses, tresses means long hair, अपने बालों को झाड़ा, and stood up smiling, हंसते हुए खड़ी होगी। They spread the flowers, covered themselves with them and went to bed. अब उन्होंने रात को क्या किया? चारों तरफ फूल फैलाए, अपने आप को भी कवर किया और सो गए। They did this again and again for several days. Now they started enjoying, रोज यही होता था। Every morning the couple threw all the withered flowers from the window. Withered means dried. सूखे फूलों को विंडो से फेंकते थे। The heap of flowers lay like a hill. अब वहां पे क्या हुआ? रोज इतने फूल जाते थे तो वो बड़ा सा पहाड़ बन गया। The king's young daughter saw the heap of the withered flowers on one day and said to the queen,
जो राजा की बेटी थी, देखो वो कितनी ज्यादा एक्टिव है, या उसका कितना कीन माइंड है। उसने जब विदर्ड फ्लावर्स देखे, ड्राइड फ्लावर्स देखे, उसने क्वीन से बात की, लुक मदर, ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ वेयर एंड थ्रो अवे अ होल लॉट ऑफ फ्लावर्स, कि भाई और भाभी, सिस्टर इन लॉ इज भाभी, तो कहते वो देखो कितने सारे फूल बाहर फेंकते हैं। फ्लावर्स दे हैव थ्रोन अवे आर पाइल्ड अप लाइक अ हिल, जो फ्लावर्स उन्होंने फेंके हैं वो पहाड़ की तरह हो गए हैं। एंड दे हैवंट गिवन मी इवन वन, एक भी फूल नहीं दिया। तो क्वीन कंसोल्ड हर, डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो, वील गेट देम टू गिव यू सम, मैं बात करूंगी, तुम्हें कुछ फूल वो देंगे। वन डे द प्रिंस हैड गॉन आउट समवेयर, एक बार प्रिंस कहीं गया था। देन द किंग्स डॉटर हु हैड मीनवाइल स्पाइड, स्पाई होता है जासूसी करना, एंड डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ फ्लावर्स, जिसने फ्लावर्स का सीक्रेट देख लिया था। तो क्या हुआ, प्रिंस कहीं गया था। शी कॉल्ड ऑल हर फ्रेंड्स एंड सेड, उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल किया और क्या कहा, लेट अस गो टू द स्विंग्स इन सुराहन। इसका क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुराहन ऑर्चिड इंसिडेंट का। सुराहन चलते हैं। वील टेक माई सिस्टर इन लॉ, हम अपनी भाभी को लेके चलेंगे। शी विल टर्न इनटू फ्लावरिंग ट्री। अब देखो सीक्रेट जो उस लड़की तक था, फिर सिस्टर को पता लगा, फिर मदर को पता लगा, फिर हस्बैंड को पता लगा, हस्बैंड के बाद अब सिस्टर इन लॉ को पता लगा, और अब जो टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ हैज डिस्कस्ड विद ऑल हर फ्रेंड्स। तो कहती वो फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट होती है। इफ यू ऑल कम, अगर तुम सब आओगे, आई विल गिव यू फ्लावर्स दैट स्मेल वंडरफुल, मैं तुम्हें वो खुशबू वाले फूल दूंगी। फाइन। देन शी आस्क्ड हर मदर्स परमिशन, उसने मदर से परमिशन ली। द क्वीन सेड ऑफ कोर्स डू गो, जाओ, हु विल से नो टू सच थिंग्स, इन चीजों को मना कौन करेगा। द डॉटर देन सेड बट आई कैंट गो अलोन, सेंड सिस्टर इन लॉ, कि सिस्टर इन लॉ को भी भेजो। देन गेट योर ब्रदर्स परमिशन एंड टेक हर, ब्रदर की परमिशन लो, उसको ले जाओ। द प्रिंस केम देयर जस्ट देन, प्रिंस वहां आया। द सिस्टर आस्क्ड हिम, ब्रदर ब्रदर वी ऑल आर गोइंग टू द सुराहन ऑर्चिड टू प्ले ऑन आवर स्विंग्स, हम सुराहन ऑर्चिड जा रहे हैं झूलों पे खेलने के लिए। कैन सिस्टर इन लॉ कम along, क्या वो भाभी आ सकती है। इट इज नॉट माई विश दैट्स इम्पॉर्टेंट, मेरी इच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मदर, मदर पे डिपेंड करता है। ही आंसर्ड। सो शी वेंट बैक टू द क्वीन एंड कंप्लेंट, उसने क्वीन के पास जाके लड़की ने क्या कंप्लेंट की, मदर इफ आई आस्क ब्रदर ही सेंड्स मी टू यू बट यू डोंट रियली वांट टू सेंड हर, लेकिन आप तो उसको भेजना नहीं चाहते, सो यू आर गिविंग मी एक्सक्यूजेज, इसलिए आप मुझे बहाने बना रहे हो। इज योर डॉटर इन लॉ मोर इम्पोर्टेंट देन योर डॉटर, क्या आपकी बहू जो है आपकी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द क्वीन रिब्यूक्ड हर सेइंग, क्वीन को गुस्सा आ गया, उसने डांटा, डोंट बी रूड, रफली बिहेव मत करो। ऑल राइट, टेक योर सिस्टर इन लॉ विद यू, ठीक है उसको ले जाओ। टेक केयर ऑफ हर, ब्रिंग हर बैक सेफली बाय इवनिंग, और शाम तक उसको सेफली लेके आना। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, लापरवाही से। द क्वीन सेंट हर डॉटर इन लॉ विद हर द गर्ल्स, बिना मन से वो भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने फिर भी भेज दिया। Everyone went to the Surahan orchard, सारे के सारे लोग ऑर्चिड में पहुंच के। They tied swings to a big tree, उन्होंने बड़े से ट्री के साथ स्विंग्स बांधे। Everyone was playing the swing on the swings merrily, और वो सारे के सारे लोग स्विंग्स पे बड़ी खुशी से क्या कर रहे थे, झूल रहे थे। So I am stopping here right now, we'll continue it in the next lecture. So why am I stopping has a reason, because now the incident, a different incident is about to start. इसको हम लोग इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे, एक दिन में कोशिश करेंगे कि इसको हम वाइंड अप कर लें। टुडे आई हैव ट्राई टू मेक something better, try to do something better, because जो बुक के ऊपर कैमरा फोकस करके we were doing, that was not readable. Now what you will do, you will simply listen to the video, you will open your book, you will listen to the content I have shared with you, आप इसको सुनोगे, you will absorb it, you will learn it, इसको समझोगे, और इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसमें डिफरेंट टाइप की जो साइकी है, जो थॉट है फीमेल का, वो बताया है। एक फीमेल है जो अपना परिवार पाल रही है, एक फीमेल है जो अपनी मदर के लिए अपने आप को फ्लावरिंग ट्री में कन्वर्ट करती है, एक फीमेल है वो वेरी सेल्फिश, जो प्रिंस की सिस्टर है, जो प्रिंसेस है, शी इज वेरी सेल्फिश, और वो क्या करती है, शी इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम। उसको ये लगता है कि मुझे प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, किसी और को प्रायोरिटी दी जा रही है। एंड अ मदर इज देयर, जो अपनी बेटी की गलत आदतों को शेल्टर करके जो है वो औरों के लिए प्रॉब्लम खड़ा करती है। सो कुछ नहीं करना है, आपने बुक लेनी है और बुक को साथ साथ में अंडरस्टैंड करना है। जैसे क्लासरूम का जो एक एनवायरनमेंट है या एक कोशिश मैंने की है, होप सो वो सक्सेसफुल होगी। सो हैव अ गुड डे।